one of my other colleagues has in fact filed a ground report from another part of Delhi. Let's play it out. It marks a significant day for the Aam Aadmi Party and in fact the supremo of the Aam Aadmi Party, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Right now I am coming to you from the residence of Arvind Kejriwal where there are sweets that are being brought at this point of time. This is just hours after Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has been granted bail by the Apex Court in the CBI case against him in the Delhi excise policy scam. And at this moment there has been a lot of series of celebrations that have broken out at his residence, and particularly if you can see to my right, these are the posters in fact which have been placed all across this lane to welcome the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal at his residence when he will be coming out of the jail. But particularly as of now, a lot of leaders from here, in fact including the wife of Arvind Kejriwal, Sunita Kejriwal, has left from the residence. She spoke to the media just short while ago and also addressed them about the hope that the party has now reignited after the Apex Court has in fact made it clear that Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal can walk free out of the Tihar jail in the CBI case that has been registered against him. The visuals that you can see around me are the heavy police deployment that of course has been placed at the residence of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, and there were the party leaders and karyakartas who came here and also in fact cheered and supported the decision that has been taken by the Supreme Court, and there is in fact a complete mood of victory and joy if we talk about the Aam Aadmi Party at this point of time. And Sunita Kejriwal and other senior party leaders of the Aam Aadmi Party have left for the office of the AAP at other location, and at this point of time there is also going to be a lot of expectation and anticipation as far as Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's return to back his home is concerned. This is Simran with video journalist Avinash for NewsX. In fact, my colleagues have also spoken with Aam Aadmi Party leaders including Gopal Rai and Sushil Gupta. आम आदमी पार्टी के लिए आज खुशी का दिन है क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल आज बाहर आ रहे हैं। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मंत्री गोपाल राय मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं आज ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला? देखिए, ये ऐतिहासिक फैसला है और ऐतिहासिक दिन भी है। पूरे दिल्ली के लोगों में उत्साह का माहौल है और इस फैसले ने पूरे देश में एक संदेश दिया है कि तानाशाही से लड़ने की ज़रूरत है, झुकने की नहीं। तानाशाही कितना भी ताकतवर हो, उसे हारना पड़ता है। सर, करीबन 6 महीने अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, उससे आपके कई मंत्री भी भाजपा का दामन उन्होंने थामा, पार्षद भी गए, विधायक भी गए। अब क्या लगता है सर, आगे आने वाले हरियाणा और दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर इसका कितना असर? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से कल भी लड़ रही थी इनसे और आगे भी पूरी ताकत से लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी लोगों के अंदर उत्साह बढ़ा है और पूरी मजबूती से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। सर, आखिरी सवाल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सेलिब्रेशन करने की क्या जरूरत है, बाइज्जत बली थोड़ी हुए हैं। भाजपा को डर लग रहा है केजरीवाल आ गए। केजरीवाल के आने का डर भाजपा के नेताओं के चेहरे पर दिखने लगा है। सर, आपके चेहरे की भी चमक बहुत बहुत बता रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप गोपाल राय को सुन रहे थे जिन्होंने लगातार भाजपा पर कटाक्ष किया। मैं शुभ कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ इंडिया न्यूज़ दिल्ली। हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुशील गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, हरियाणा का चुनाव है, अब सीएम बाहर आ रहे हैं, 90 की 90 सीटों पर आपने बैटिंग की है, क्या लगता है सर, क्या फर्क पड़ेगा उनके आने? आज असत्य पे सत्य की विजय हुई। आज अहंकारी शासक का सिर झुका है। आज आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बाहर आ रहा है, हरियाणा का शेर बाहर आ रहा है, हरियाणा का लाल बाहर आ रहा है। हरियाणा में जाएंगे, पूरी ताकत के साथ जीत करेंगे और वहाँ पे सरकार बनाएंगे। सर, पहले आप खुद अरविंद केजरीवाल की 5 गारंटीज का प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब साक्षात अरविंद केजरीवाल बाहर जेल से आ रहे हैं 6 महीने के बाद। क्या लगता है सर, जब वो प्रचार करेंगे 90 में से आप कितनी सीटें निकाल पाएंगे? कोई पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, पूरी ताकत के साथ सरकार बनाएंगे और इस चुनाव के ईमानदारी के साथ हम जीतेंगे। आज बीजेपी के अहंकारी सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक देना ही हमारा लक्ष्य है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आप सुशील गुप्ता को सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर जिन्होंने कटाक्ष किया। मैं शुभ कैमरा पर्सन अविनाश के साथ इंडिया न्यूज़ दिल्ली।
कहेंगे मानो आज ही होली है, आज ही दिवाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री बाहर आ गए हैं, बाहर आने की बातचीत हुई है। ये बताइए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजीव झा जी मौजूद हैं। कैसे देखते हैं आज 6 महीने बाद फाइनली सर आपका वेट खत्म हुआ? बिल्कुल, आप देखिए लोगों में बहुत उत्साह है, सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, ना केवल कार्यकर्ता बल्कि पूरे देश जो अरविंद केजरीवाल जी की एक उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं, उस सब में उत्साह है। पूरे देश में आज लोग उत्साहित हैं और मुझे तो एक जोरदार तमाचा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और प्रधानमंत्री पे है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये सीबीआई का अरेस्ट कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं जवाब के बदले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सीबीआई, वो जो सुप्रीम कोर्ट कहती है यार ये केस्ड पैरेट है, पिंजरे का तोता है, वो आज साबित हो रहा है। और समय हिदायत भी दी कि समय आ गया है कि अब एक अनकेस्ड पैरेट की तरह सीबीआई को बिहेव करना चाहिए, ताकि लोगों में प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के प्रति लोगों का भरोसा बढ़े। उन्होंने कहा कि ईडी के अरेस्ट की बेल मिलने के बाद जिस तरह से सीबीआई ने अरेस्ट किया, ये दर्शाता है कि वो ईडी के बेल को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की गई। तो ये तमाम जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन ये साबित करता है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश में तानाशाही मचा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि इस देश को तानाशाही से आज़ादी मिले। सर, भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती आ रही है कि अभी बाइज्जत बली थोड़ी किया गया है, फिर सेलिब्रेशन की क्या जरूरत है, उस पर क्या कहेंगे? तो फिर यही कह रहे थे ना कि अगर सर निर्दोष हैं तो बेल क्यों नहीं मिल रही? अब बेल मिल गई, अभी बेल ही हो सकती है ना। ट्रायल हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि भाई ट्रायल में चीज़ें तय होगी, बेल तो दो। लेकिन एजेंसीज लगातार जिस तरह से किस तमाम कोशिशें की, ईडी को बेल मिल गया तो सीबीआई से अरेस्ट कर लिया। आज जो तमाम ऑब्जर्वेशन, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता और खासकर देश के प्रधानमंत्री को आज के दिन माफ़ी मांगना चाहिए। जिस तरह से वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मिसयूज कर रहे हैं, आज देश के सामने उनको स्वीकार करना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए। महीने सीएम जेल में रहे सर, ऐसे में आपके कई पार्षद विधायक बीजेपी गए, लेकिन अब वो वापस आ गए हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है इसका हरियाणा और दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? दिल्ली, हरियाणा और पूरे देश में इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। एक बात समझिए, अरविंद केजरीवाल एक बदलते राजनीति की उम्मीद है। अरविंद केजरीवाल अंतिम व्यक्ति तक सरकार से कैसे फ़ायदा पहुँचे, उन्होंने एक रास्ता दिखाया, एक तरीका बनाया है। तो पूरे देश में उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। तो कहते हैं ना, सोना को जितना आप तपाओगे उतना निखर के निकलेगा। अरविंद केजरीवाल और निखर के बाहर आ रहे हैं। अब लोगों की उम्मीदें और अरविंद केजरीवाल से बढ़ती दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से आम आदमी पार्टी कैडर की खुशी आपको देखने को मिलेगी। 6 महीने का इंतजार रहा, उसके बाद अब जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो इसका लिहाजा तौर पर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी असर देखने को मिलेगा। मैं शिव कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.